Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series, the Abhyas series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a day, as part of which आज हम लोग करने वाले हैं Labor Laws, Interstate Migrant Workmen, Regulation of Employment and Conditions of Services Act 1979. Now why is this series important? Because when we look at the industrial relations and labor laws, be it APFC post या फिर आपके ईओ और एओ एग्जामिनेशन, दोनों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, 120 क्वेश्चंस में से 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स. ठीक है, एंड लास्ट ईयर तो 17 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड ऑफ विच अगर आप बहुत अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लोगे, मीन बेसिक्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा सही से प्रैक्टिस कर लोगे, सो आप आराम से 10 प्लस क्वेश्चंस तो आप क्लियर कर पाओगे, एंड दैट विल, विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट दीज टॉपिक्स हैव एंड आल्सो द काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट दे हैव. सो with that you can understand the kind of importance associated with IR and labor laws to the UPSC EPFO examination, जिसका already notification भी आ गया है, and I completely understand कि आप बहुत seriously prepare भी कर रहे होगे उसके लिए. Okay, so to aid in your preparation ये series हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं. ठीक है, so before proceeding any further, एक छोटा सा announcement है for all those who are preparing for this examination and looking out for a chance कि कब हमें बहुत ही अच्छा सा एक discount मिल जाए, and then we can go ahead with the purchase of courses. And here EduTap brings to you a never before offer wherein various courses पे you can save up to 80%, and now for UPSC EPFO you are being given with a flat 60% off, and you can say yes, it is never before offer. आपने कभी तक इतना huge heavy discounts देखा नहीं होगा at EduTap, and you can use the code 1time60 ONETIME60, कोई spacing नहीं है, all are in capitals, and you can use this code and purchase various courses that are being offered for you as part of your UPSC EPFO preparation, like your master course है और special subjects course है या फिर टेस्ट सीरीज कोर्स है, सभी के लिए ये कोड आपके लिए कूपन कोड अप्लाई होगा. एंड यू कांट, यू नो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, दिस इज ओनली वैलिड टिल 6 अगस्त. आज से शुरू एंड 6 अगस्त को ये कंप्लीट होगा. सो प्लीज हरी, योर टाइम इज नाउ, बिकॉज अभी आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी आ गया, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू टेक द राइट डिसीजन एंड परचेज द कोर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग द कोड 1time60 ONETIME60, wherein you can avail flat 60% off on the course fee. ठीक है, so with this let me start today's session. जो हमारा आज का सेशन है 15 MCQs on the Interstate Migrant Workmen, Regulation of Employment and Conditions of Service Act. Now ये किस में एप्लीकेबल है? Now if we look at the industrialization, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया है, people started working, right, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, and accordingly जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा था, people started moving from one place to another place, and sometimes even moving from state to state. That led to the lot of, you know, कई बार कई सारे issues निकल के आए, because of which the government has come up with this act wherein that looks into the welfare of the interstate migrant workmen people. So this is applicable to those establishments और contractors, क्योंकि contractors ये इनको hire करके एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है to work in the units in establishments where employing 5 or more interstate migrant workmen on any day of the preceding 12 months. There this act would be made applicable. मतलब उस establishment को परमिशन जो भी है that has to be taken care of, register करना पड़ेगा अपने आप को.
ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन अंडर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट. अभी हमने देखा है कि दिस इज फॉर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एंड ऑल दैट फॉर देयर वेलफेयर एक्सेट्रा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हु exactly is this person, who exactly is this interstate migrant workman. Now if we look at this person, he is the one recruited by a contractor in one state for employment in other state with or without the knowledge of the principal employer. अब principal employer का कोई जरूरत नहीं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, उनके बीच में जो टाई अप रहता है but he is not directly concerned with the workman as such. The workman is majorly concerned with the contractor. Okay, अगर contractor ने अपना duties fulfill नहीं किया है कुछ जगह पे, जैसे paying the salary etc, wages etc, then it is a responsibility of the employer to pay that fee, wage etc, वो सब रहेगा. But otherwise direct contact वो रहेगा contractor के through ही for the interstate migrant workmen. So here B is the correct answer. A person recruited by contractor in one state for employment in another state with or without the knowledge of the principal employer. Moving on to our next question, which of the following currently defines the term principal employer as per the Interstate Migrant Workmen Act 1979. Now principal employer कौन है? Now ये different establishments के लिए different person होगा. Like your factory के लिए होगा तो either the owner or the occupier or the manager who is taking care of the factory. ठीक है, तो ये नहीं है. इन द कॉन्टेक्स्ट अदर्स, ओनर, माइन के लिए तो ओनर होगा, बट अगेन अगर कोई एजेंट है, मैनेजर है, दैट ऑल्सो कंसिडर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. सो यहाँ पे नहीं, हियर दे आर सेइंग एक्सक्लूडिंग, नो, इंक्लूडिंग एनी एजेंट और मैनेजर. ठीक है. इन ऑल एस्टैब्लिशमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज डिफरेंट एज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. ऐसा नहीं है, नो, डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए डिफरेंट पर्सन होगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके. नो, गवर्नमेंट के लिए कौन से होगा? फॉर दैट, फॉर एन ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वुड बी द HOD, दैट हेड ऑफ द ऑफिस, और एनी अदर ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड, दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. कुछ भी प्रॉब्लम होता है दैट दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एंड कुछ इश्यूज होते हैं, इंस्पेक्टर ने कुछ इश्यू निकाला है, देन दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. Okay, so here D is the correct answer. So next question, according to the Interstate Migrant Workmen Act, if the registering officer neither grants the certificate of registration nor returns the incomplete application within 1 month, what should be the next step? As I've said, जो establishment है उनको register करना पड़ेगा कि यहाँ पे interstate migrant labor काम कर रहे हैं. ठीक है, एंड रजिस्टरिंग ऑफिसर को वो भेज देते हैं लेटर, एंड अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने ना तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, ना ही ये बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है, आपको इसको सही से कंप्लीट करके देना पड़ेगा. ठीक है, ये पूरा विद इन 1 मंथ हुआ नहीं है. विद इन 1 मंथ एक्चुअली उनको तो रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए. सो इन दैट केस व्हाट शुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ओनर डू? सो इन दैट केस वो एक फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एंड वंस दिस फ्रेश एप्लीकेशन has been applied, the registration officer, the registering officer must within 15 days issue the certificate. फ्रेश एप्लीकेशन आते ही उनको विद इन 15 डेज, क्योंकि उन्होंने पहले जो टाइम दिया गया है उनको 1 मंथ, उसमें उन्होंने कुछ भी फुलफिल नहीं किया है इन ईदर केस. ठीक है, ना तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, ना तो इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करके बोला है. सो अगेन अप्लाई कर सकता है एस्टैब्लिशमेंट ओनर, एंड इन दैट केस ही विल बी गिवन द immediately within 15 days he should be issued the certificate of registration. ठीक है. Moving on to our next question, under the Interstate Migrant Workmen Act, when is a principal employer prohibited from employing interstate migrant workmen? When he'll not be able to employ them? See, this happens when इन दिस ऑप्शन 10 माइग्रेंट वर्कमैन से कम है, नो, 5 से कम, 5 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस नॉट, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट फ्रॉम, नो, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कहीं से भी हो सकता है. सीजनल ड्यूटी, एक्चुअली सीजनल ड्यूटी पे ही ज्यादा माइग्रेंट वर्कमैन को लेते हैं क्योंकि उस टाइम डिमांड ज्यादा होती है. ठीक है. सो हियर इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज इफ द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नो एप्लीकेशन इज पेंडिंग, देन
the principal employer cannot employ any interstate migrant workmen. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. According to the Interstate Migrant Workmen Act, a contractor can recruit or employ interstate migrant workmen only if yes, the contractor also has to apply for a license, and whatever the conditions that have been mentioned in that license he has to follow, then he can recruit or employ interstate migrant workmen. He submits a written agreement with the उनका जो भी agreement होगा वो अलग बात है, but it's not the case that वो नहीं होगा तो he can't employ, nothing like that. The worker belongs to, no, ऐसा कुछ नहीं है. He provides free housing and transportation to all workers, वो तो provide करना है, but it is not because of that he can't recruit, it is because अगर लाइसेंस नहीं है तो. सो मोस्ट वैलिड और रीजनेबल जो पॉइंट है दैट वुड बी द बी. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू द कॉन्ट्रैक्टर्स? सी, whenever a contractor applies for the license to the licensing officer, the licensing officer must conduct investigations as per the prescribed procedure and then grant the license. Once he gets the license, the contractor, then he can वो अपने जो interstate migrant workmen है उनको hire कर सकता है. Okay, so A is the correct answer. बाकी भी options देख लेते हैं. A contractor can apply for license without providing the details. No, सब कुछ उसमें provide करना पड़ेगा. A license once granted is valid permanently. No, उसका भी एक टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन होते ही उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा. नो रेन्यूअल, नहीं रेन्यूअल होता है. ठीक है, सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. A contractor recruits interstate migrant workmen from Bihar to work in a factory in Maharashtra. What must the contractor do after the recruitment? Once this is done, see, जब भी interstate migrant workmen को लेके आते हैं, जिस स्टेट से, मतलब रिक्रूटिंग स्टेट एंड जिस स्टेट में जो काम करवा रहे, जहाँ वर्किंग स्टेट, दोनों स्टेट के अथॉरिटीज को कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ता है कि हाँ मैंने ये रिक्रूट किया है. सो सेंड द वर्कमैन डायरेक्टली to the informing authorities only in Maharashtra. No, दोनों states को करना पड़ता है. Notify only the authority in the recruiting state. No. Furnish the recruitment details to the specified authorities in both the recruiting and employment states within 15 days of recruitment. This is true. रिक्रूटमेंट करते ही विद इन 15 डेज उनके पूरे डिटेल्स के साथ कहाँ से लिया, कहाँ पे जा रहे हैं, एवरीथिंग दे हैव टू प्रोवाइड टू द बोथ द रिक्रूटिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स. इश्यू द फाइनल वेज स्लिप. नो, ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस इज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर इन दिस केस. ठीक है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है. Again, which of the following facilities are to be provided by the contractor to the interstate migrant workers in connection with the work of an establishment to work in the interstate to which the Interstate Migrant Workmen Act 1979 is applicable? So जिस establishment के लिए ये act applicable होगा, then contractor को क्या क्या facilities प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने माइग्रेंट वर्कमैन को. ठीक है. नाउ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स. यस, दिस इज ट्रू. दे हैव टू प्रोवाइड, नो, मेल हो फीमेल हो दोनों को इक्वल पे होना चाहिए. प्रोविजन फॉर सूटेबल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन. यस, ये भी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करें. प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. यस, अगर कुछ हैजार्डस वर्क है या फिर द डिमांड ऑफ द वर्क, अगर कुछ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की जरूरत है तो डेफिनेटली दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. अगर प्रोटेक्टिव गेयर चाहिए दैट ऑल्सो हैज टू बी प्रोवाइडेड. प्रोविजन फॉर एज ओल्ड बेनिफिट स्कीम. ये नहीं है क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ ही दिनों के लिए काम करेंगे. सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट देयर. एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फैसिलिटीज. यस, जो भी रिलेवेंट है दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टिल द टाइम वो आप उनके साथ काम कर रहे हैं. ठीक है. सो हियर 1, 2, 3 and 5. C is the correct answer. ठीक है. Moving on to our next question. Under the Interstate Migrant Workmen Act, who is responsible for maintaining and updating the passbook of an interstate माइग्रेंट वर्कमैन? नो, व्हेनेवर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को हायर करता है, कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पासबुक इश्यू करे. उसमें उसका माइग्रेंट लेबर का फोटोग्राफ, नेम, क्या काम कर रहा है, उनका एज एक्सेट्रा, एवरीथिंग बेसिक डिटेल्स आई हैव टू बी प्रोवाइडेड. सो दैट कभी इंस्पेक्टर आया चेकिंग के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट, ही शुड नो दैट ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड दीज आर हिज डिटेल्स. ओके. एंड वो पासबुक में जो भी वेजेस है, कितना दे रहे हैं एंड ऑल दैट हैज टू बी एंटर्ड फ्रॉम
time to time basis. Now who is responsible for maintaining all this? Is it the responsible of the principal employer? No, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं. हमने पहले ही बोला था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द कॉन्ट्रैक्टर एंड हायर, एंड वो वर्क कर सकता है उस एस्टेब्लिशमेंट में जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर. रजिस्टरिंग ऑफिसर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना, वो थोड़ी ना हायर कर रहा है. माइग्रेंट वर्कमैन हिमसेल्फ, उनको तो इतना नॉलेज नहीं था, कई बार वो इलिटरेट भी होते हैं. सो नो, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयड दिस वर्कमैन, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन टू वर्क अलोंगसाइड लोकल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. ठीक है. Now both groups perform similar tasks under the same conditions. दोनों का सेम काम है. अब डिमांड ज्यादा है तो बाहर से लेके आए हैं and they are working. Now according to the Interstate Migrant Workmen Act, what wage and service conditions should apply to the migrant workers? Let's have a look. They may be paid less since they are provided written fare and displacement allowance. No. They should be paid in kind and given fair holidays. No. Their wages and service conditions are decided solely by the contractor. No, जो already establishment के लिए है वही इनके लिए applicable होगा. So they must be given the same wage rates, holidays and working conditions as local workers doing similar work. बिल्कुल उनको अलग से नहीं देख सकते हैं since they are doing the same work. Though return fare, journey allowance, displacement allowance, everything is provided by the contractor to these workmen, still they have to be treated equally. So here D is the correct answer, and these are the various responsibilities of the contractor to be taken care of. ठीक है. Moving on to our next question. A contractor recruits an interstate migrant workman with agreed monthly wage of rupees 1200. ठीक है, ये monthly wage है. Now according to the Interstate Migrant Workmen Act, how much displacement allowance must the contractor pay at the time of recruitment? Other than journey allowance etc. return fare, कितना उनको पे करना पड़ेगा? Now here in this case, as per the provisions of this act, either 50% of the agreed wages or ₹75, जो भी हायर रहेगा that should be paid in addition to the wages, and this amount is non-refundable. So here यहाँ 1200 है, so 50% of 1200 is 600. So and it is non-refundable and paid in addition to the wages to that interstate migrant workman. Okay, 75 rupees no, because again whichever is higher in both of these वो उनको पे करना पड़ेगा. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. An interstate migrant workman is recruited from Odisha to work in a factory in Gujarat. According to the Interstate Migrant Workmen Act, what is the contractor legally required to provide in terms of journey allowance? Okay, now जिस दिन से वो रिक्रूट हुआ है वो पर्सन, उस दिन से वो लीगली he has to provide the wages. So here fare for both outward and return journeys, जो जर्नी मतलब जाना है वहाँ तक, मतलब ओडिशा से गुजरात जाना है तो वो फेयर उनको देना पड़ेगा. जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तो गुजरात से ओडिशा वापस आना पड़ेगा, सो वो पैसे देने पड़ेंगे. प्लस वेजेस फॉर द ट्रैवल पीरियड एज इफ द वर्कमैन वर ऑन ड्यूटी, बिकॉज वो वर्क के लिए जा रहा है. सो जिस टाइम से वो रिक्रूट किया एंड जिस दिन से वो रिक्रूट हो गया है उस दिन से वो एप्लीकेबल होगा. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. सो रिटर्न फेयर ओनली इफ द वर्कमैन कंप्लीट्स 1 year ऑफ सर्विस, ऐसा नहीं है कंपल्सरी. ओनली द फेयर फॉर द आउटवर्ड जर्नी, नो जर्नी अलाउंस इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड द वर्क साइट, नो. दिस ऑल्सो हैज टू बी प्रोवाइडेड, नो डाउट, बट अगेन दिस ऑल्सो देना भी पड़ेगा. बोथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी एंड द वेजेस वुड बी फ्रॉम दैट डे सिंस ही हैज बीन रिक्रूटेड. Now, an interstate migrant workman borrowed 1000 rupees from his contractor during his period of employment. कुछ ज़रूरत आ गई तो उन्होंने 1000 रुपये लोन पे लिए हैं. आफ्टर हिज एम्प्लॉयमेंट एंड्स द कॉन्ट्रैक्टर डिमांड्स रीपेमेंट. अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड हो गया, 2 महीने के लिए कुछ लेके आए थे एंड वो हो गया है. नाउ व्हाट डज द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट से इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? द कॉन्ट्रैक्टर कैन फाइल ए सूट टू रिकवर द डेट.
नो दिस नॉट. द वर्कमैन मस्ट रीपे द डेट विद इन 6 months, ये भी नहीं है. द डेट मस्ट बी रीपेड ओनली इफ मेंशन्ड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं है. नाउ हियर द डेट इज कंसिडर्ड एक्सटिंग्विश्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड थ्रू एनी लीगल प्रोसीडिंग्स. इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्टर ने या एम्प्लॉयर ने किसी माइग्रेंट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को कुछ मनी बोरो किया है विद इन, वो जब भी उनका एम्प्लॉयमेंट एंड होने वाला है उससे पहले ही दे हैव टू टेक दैट money back, otherwise the liability ends. The extinguish, no, it gets, the debt is considered extinguished and it liability बिल्कुल interstate migrant workman की तरफ से वो खत्म हो जाता है. He is not liable to pay. In this case, this labor is not liable to pay 1000 rupees to the contractor. उसका हो गया है. So here C is the correct answer. This is what the act says. So term end होने से पहले ही they have to recover the dues. Moving on to our last question for today. According to the provisions of the Interstate Migrant Workmen Act, for the purposes of the enactments listed in the schedule, that is a labor protection laws. इस schedule में क्या है? Labor protection laws है. Now, and as per that, according to the provisions, for the purpose of these acts, an interstate migrant workman is considered to be employed and actually working. किस दिन से उनको कंसिडर करेंगे कि वो एम्प्लॉयड है फॉर दैट कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. नाउ व्हेनेवर, जब भी उनका रिक्रूटमेंट होता है उसी दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिक्रूटमेंट, इवन इफ ही हैज नॉट येट रीच द एस्टैब्लिशमेंट, स्टिल इन ट्रांसिट और समथिंग, द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड विद दैट कॉन्ट्रैक्टर. एंड जो भी लेबर प्रोटेक्शन लॉस है, लाइक मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं अंडर द स्केड्यूल, दैट वुड बी एप्लीकेबल टू हिम. सडनली फॉर एग्जाम्पल ट्रांसिट में ही कुछ हो गया है, ओके, मेटर्निटी का कुछ रिलीफ लेना पड़ा. सो इन दैट केस स्टिल इवन इफ ही हैज नॉट रीच्ड द एस्टैब्लिशमेंट, दैट पर्टिकुलर एक्ट विल बी मेड एप्लीकेबल टू दिस पर्सन, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिक्रूटमेंट ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, मतलब वो दैट ही इज एम्प्लॉयड विद दैट एस्टैब्लिशमेंट and the contractor. So in this case, from that date he will be treated as an interstate migrant workman only in respect of the contractor and the establishment for which he is going to work. ठीक है. So this is all from my end and I really hope that you have liked this session. And before winding up, एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है, एंड अगेन मैं एक बार रिकैप दे दूंगी सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड कि कब कोर्स आपको लेना है इमीडिएटली. सो हियर वी आर, अ नेवर बिफोर ऑफर हैज बीन is being given by EduTap, wherein you can avail flat 60% डिस्काउंट ऑन वेरियस कोर्सेज अंडर UPSC EPFO. जैसे कि आपका मास्टर कोर्स है, स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स है, या फिर आपका टेस्ट सीरीज है, तो दिस वुड बी एप्लीकेबल एंड यू कैन यूज द कोड one time 60 ONETIME 60 without spacing, all caps, and get your discount. And as I've said earlier also, ये never before offer है, अभी तक ऐसा ऑफर कभी लॉन्च नहीं किया गया है. And I sincerely request you all to have a look at it. And ज़्यादा टाइम नहीं है, you have it is valid till 6th August only. So आप एक बार सोच के you can go ahead with this, because अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है, and this is the right time for you to invest in something that can get some results for you. And this is it. Never before offer by EduTap being offered for UPSC EPFO, valid till 6th August. So with this I am winding up this session, and thank you very much for being so patiently till the end, and I wish you all all the best for the exam preparation. एंड जो ये डिस्काउंट के डिटेल्स है या फिर आपको कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू द कोर्सेज और द कोर्स ऑफरिंग्स और भी क्या है, यू कैन ऑलवेज चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय.